Hello friends, I Purushottam Maurya welcomes you on this A to Z exam group platform. Today we will study about integration. So friends, in integration, in this lecture series of integration, today we will study about integration by parts. So the first formula is below this, right friends? So if u and v are two functions of x, right friends, then the formula for integration is if u and v two are in a product form, right friends, then what we will do, take first function, then integrate second, and then like this. But the very first challenge is how you take first function and how you take second function, because there are two functions u and v. In any one of them you can choose first and second. It might be happen that you have taken u as a second function, right, second function, and v as a first function. What are the criteria to decide which one be first and which one be second? So we will discuss the criteria, right friends? But before that, you should see this. So when you decided the first function and second function, then write u मतलब first function outside and integrate second function, right friends? Apply minus sign and write integration, and then differentiate first function multiplied by integration of second function, and this whole you have to again integrate the differentiation of first and the integration of second. Whatever you get, right friends, you have to again integrate it. I hope it will be clear to you. Once again, see it. There are two functions in product form. Whatever you called u or v or f1 or f2x, whatever you see, it does matter, right friends? But put first function outside, then integrate second function, apply negative sign, then होल इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए और इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन का और सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन का, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों मल्टीप्लाइड के फॉर्मेट में है यहाँ, राइट फ्रेंड्स? उसके बाद इन दोनों के रिजल्ट को इंटीग्रेट करना है। अब फर्स्ट फंक्शन किसको अज्यूम करेंगे, सेकेंड फंक्शन किसको अज्यूम करेंगे, इसके क्या क्राइटेरिया है उसको हम लोग देखते हैं, राइट फ्रेंड्स? जो एक वर्ड जो है, एक एक्रोनिम है आईलेट, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, ये बहुत यूजफुल होगा फ्रेंड्स। जो आई है इसमें, वो स्टैंड करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स है। ऐसे जो फंक्शंस हैं, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उसके लिए आई, राइट फ्रेंड्स? फिर जो एल है वो लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए है, जैसे log x है, log x स्क्वायर है, एंड सो ऑन। सिमिलरली ए स्टैंड फॉर एल्जेब्राइक फंक्शंस, x power 4 x square plus 1 and like this. T stands for trigonometric functions, that is sin x, tan x and so on. And E stands for exponential function, it is e power x and so on. So the sequence, right friends, I is at a first position, I is at a first position, right friends, and L is a second, it is third, it is a fourth, and it is a fifth position. इसमें करना क्या है आपको, जो फंक्शन पहले है उसको फर्स्ट और दूसरे वाले को सेकेंड वाली। सिंपली सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, वहां पर इनवर्स फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है, राइट फ्रेंड्स?
सपोज करिए कोई फंक्शन गिवन है, आपको दिया है साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स गिवन है आपको। इसमें आप किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे? जो ऑर्डर है वो क्या कहता है कि इनवर्स को पहला मानना है, तो आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, राइट। और ये कहता है कि जो लॉगरिथम इसको सेकंड मानना है, इसको आप सेकंड मान लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन अगर इनवर्स और अलजेब्राइक हो, इनवर्स हो और अलजेब्राइक हो, देखिए केस नंबर 2, अगर इनवर्स हो आपके पास, इस साइन इनवर्स एक्स है आपके पास और एक्स स्क्वायर है, तो किसको क्या मानेंगे आप? इसको इनवर्स को आप फर्स्ट मानेंगे और अलजेब्राइक को आप सेकंड मानोगे, राइट फ्रेंड्स। सिमिलरली सपोज ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों आपके पास है, साइन एक्स भी है और साइन इनवर्स एक्स भी है आपके पास, राइट फ्रेंड्स। अब ये किसको फर्स्ट किसको सेकंड आप मानोगे? तो जो इस ऑर्डर में पहले उसको आप फर्स्ट मानोगे, जो इसमें बाद में से आप सेकंड मानोगे। सिमिलरली अगर एक्सपोनेंशियल है और अलजेब्राइक है, किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानोगे? और वैसी बात है, अलजेब्राइक को पहले और एक्सपोनेंशियल को आप सेकंड फंक्शन अज्यूम करोगे। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट कि आप किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे, ये पूरी तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो हम उस फार्मूले को, जो फार्मूला यहाँ पर यूज किया था, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, और जो आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन कर देना है, राइट फ्रेंड्स। तो इसको आप देखिए, अब यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? जैसा कि हम लोगों ने इंपोर्ट रखा है, अलजेब्रा भी है और अलजेब्राइक फंक्शन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आईलेट अगर आप यूज करेंगे, आईलेट, तो आईलेट के हिसाब से किसको फर्स्ट किसको सेकंड माना जाएगा? अलजेब्राइक को आप फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करोगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को आप सेकंड फंक्शन अज्यूम करोगे। और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, राइट। फर्स्ट फंक्शन को आप बाहर रखते हो, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रख लीजिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, sin 3x dx, माइनस एन अप्लाई करना है, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाना है, फिर ब्रैकेट बंद करनी है, और फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन को यहाँ पर भी इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ये है साइन 3x और dx, राइट फ्रेंड्स। और एक dx होगा बाहर, क्योंकि आप होल का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो गया आपका x। और आप जानते हो कि जो साइन x का इंटीग्रेशन होता है वो cos x होता है, बट नेगेटिव साइन के साथ होता है, और सिंस यहाँ पर ये 3 भी है, तो ये हो जाएगा डिवीजन में, राइट फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा आपका अपॉन में 3 हो गया, माइनस एन अप्लाई कर दीजिए और इसको लिख दीजिए cos 3x। आई होप इट इज क्लियर टू यू। माइनस एन अप्लाई कीजिए, ये बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाइए, डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू तो डिफरेंशिएशन की 1 हो गई, मल्टीप्लाई साइन 3x का, साइन 3x का क्या होगा? अगेन आपका हो जाएगा माइनस cos 3x बाई 3, और अभी बाहर भी तो dx है क्योंकि अभी होल का इंटीग्रेशन है। अब ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 है, इसको बाहर कर लीजिए, cos 3x dx, राइट फ्रेंड्स। शो इसको माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 और इसको 1/3। इस cos 3x को अगेन आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो cos इसके इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि साइन होता है, तो इसको आप लिखोगे साइन 3x डिवाइड में 3। क्यों 3? क्योंकि यहाँ पर ये 3x है, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप दैट ये स्टेप्स बिल्कुल ही क्लियर होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। और
फिर आप इसको फाइनली लिख देंगे माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 प्लस साइन 3x बाई 9 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड कर दोगे c। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि इस क्वेश्चन में पूरी क्लैरिटी होगी, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। अब इसमें आप किसको फर्स्ट किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे? तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का एडिशन कैसे होता है कि आइलेट के हिसाब से फ्रेंड्स, राइट। आइलेट आप लिखिए और इसमें देखिए कौन सा फर्स्ट कौन सेकंड है। तो अलजेब्रा पहले है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में है। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया आपका, सेकंड फंक्शन ये हो गया। अब जब ऐसा है तो फिर आप इसमें इसको लिखिए x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx और एक राइट फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपको कुछ ध्यान देनी होगी। ये x हो गया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है जानते हो आप? tan x, राइट फ्रेंड्स। और ये इंटीग्रेशन लगाइए डी डी एक्स का, इसका हो गया 1 और sec स्क्वायर x का tan x dx, राइट फ्रेंड्स। सो अब हो गया आपका x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब यदि आपको tan x का इंटीग्रेशन अगर नोन है तो बहुत गुड है, नहीं नोन है तो आप निकाल भी सकते हो। बस इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है मैं किसी और क्लास में कराऊंगा। अभी के लिए आप इसको याद रखो और इसको डायरेक्टली यूज करो। तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका log cos x, राइट फ्रेंड्स। तो इसको आप लिख लो, ये आपको हो गया x tan x और ये होता है आपका माइनस log cos x। तो ये हो जाएगा आपका log cos x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को ऐड कर दीजिए। फ्रेंड्स आई होप कि ये वो क्लियर हो गया होगा। नाउ टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x log x, राइट फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करोगे आप? अब देखो आइलेट कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे? तो अलजेब्रा पहला है और सॉरी लॉगरिथमिक एल पहले है, ये बाद में आता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो जाएगा? ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो डिसाइड कर लेते हैं log x इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लगाइए ब्रैकेट d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x, राइट फ्रेंड्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है x dx और एक होल का dx लगाइए log x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2, नो प्रॉब्लम। अब डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है? 1 बाई x और इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर log x बाई 2 माइनस x कट जाएगा 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा x dx हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट। तो
ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर log x by 2 minus 1 by 2 into x square by 2, राइट फ्रेंड्स। सो फाइनली ये आपको हो गया x स्क्वायर log x माइनस x स्क्वायर, राइट, और इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 4 है, राइट फ्रेंड्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, राइट फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, सबसे पहला काम जो है वो साइन स्क्वायर एक्स को रिमूव करना है। इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो इसकी बेसिक आइडेंटिटीज हैं कि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट फ्रेंड्स। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो साइन स्क्वायर एक्स है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। इसको यहाँ पुट करते हैं x इंटू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट फ्रेंड्स। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2 एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स कॉस 2x डिविजन ऑफ dx माइनस साइन लगाइए और यहाँ पर भी ये dx। अब पास दो फंक्शन होंगे, राइट फ्रेंड्स। सो यहाँ पर 1 बाई 2 को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 1 बाई 2। अब इसमें देखिए अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट फ्रेंड्स, अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक। अब यहाँ पर आप आइलेट यूज कीजिए, अलजेब्राइक है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, राइट फ्रेंड्स। तो आप इसको बाहर रखिए इसको और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन लगाइए d dx ऑफ फर्स्ट x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos 2x dx और होल के लिए भी, राइट फ्रेंड्स। अब जब आप इसको करोगे तो ये क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान, और ये बाहर भी है माइनस 1 बाई 2 और ये आपका हो जाएगा एक्स तो था ही, कॉस का क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x डिवाइड बाई हो जाएगा माइनस चिन्ह अप्लाई कीजिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कॉस का साइन 2x बाई 2 साथ में इंटीग्रेशन का साइन, राइट फ्रेंड्स। सो लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस ये आपका कंप्लीट हो जाएगा माइनस एक्स साइन 2x डिवाइड बाई 4 माइनस 1 बाई 2 बाहर लेंगे इंटीग्रेशन का साइन और साइन 2x dx, राइट फ्रेंड्स। सो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 साइन 2 इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होता है माइनस कॉस एक्स, हो जाएगा कॉस 2x और डिवाइड में 2 भी आएगा साथ में, तो हो जाएगा फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन
2x plus cos 2x divided by 4. Friends, I hope this will be clear to you. So friends, I hope this should be clear to you. So if you have any doubt, then ask your doubt. And add one thing, it is constant of integration, right friends? So I think it is clear to you. And friend, there is a one minor mistake, because it is minus 1 by 2, right friends? So here minus 1 by 2, and so it will go inside, and this will make it minus, right friends? So make it minus, and it will make it 8, right friends? So this multiply it by 2 also, तो फिर ऐसे भी चेंज हो जाएगा ये रिजल्ट। थोड़ा इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा इस स्टेप के बाद। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स साइन x by 4 minus cos x by 8 plus c, that is constant of integration, right friends? So now it is so friends, I hope that this should be clear to you. So once again review the whole lecture from starting. What we have studied today, we have studied the integration by parts, right friends? So this is applicable when two functions are in product form, as you have studied in differentiation. When two or more than two functions are in product form, then you differentiate one and left another, and like this way you proceed, right friends? But in integration, when two functions are in product form, then you have to decide first and second. In don't be confused, in differentiation there will be no rule which function is first and which function is second function. Randomly you can choose first and second, it is your choice. But in integration it is not your choice, it is fixed, in which you have to choose first and which you have to choose second. And for that there is a order, right friends? ILET, it is an acronym of that order. So I stand for inverse trigonometric, L for logarithmic function, A for algebraic, T for trigonometric, and E for exponential. So in this series or sequence, which one is first, you have to take that first function, and which is in later, you have to choose that in second function, right friends? So using this ILET order, I have solved all these four questions. X sin 3x, so x is a first, sin x 3x. Similarly in this x sec square x is a first and sec square a second function. Similarly in this x log x is a second, log x first function. And x sin square x, we have to use x as a, because now we have changed it later on, right, in cos x. So we have choose over here x cos 2x, so we have choose x algebra पहले और trigonometry बाद में, as you seen in highlight. शो cos 2x सेकेंड फंक्शन हुआ और x फंक्शन और इसको हमने सॉल्व कर दिया. तो डियर फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर में आई थिंक देयर विल नो डाउट टू यू. सो thank you so much for watching this lecture,
and write your feedback in comment section. And if this lecture is useful to you, it seems to useful to you, then share to your friends also, and subscribe this A to Z Exam Guru YouTube channel for the latest notification of lectures. Thank you students, thank you class so much. We will meet again